بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ حیدر سنو، وہ شام کو مینا پھپھو کو حویلی میں چھوڑ کر واپس جا رہا تھا کہ منشا نے اسے آواز دے کر روکا۔ مینا پھپھو آج رات ٹھہرنے کی غرض سے وہاں رکی تھیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو حیدر بھی خوشی خوشی رک جاتا، مگر اب باوجود اس سب کے اصرار کے وہ نہیں رکا تھا۔ تم واپس جا رہے ہو؟ اس کے پاس پہنچ کر منشا نے پوچھا تو اس نے رخ موڑتے ہوئے بے دلی سے اسبات میں سر ہلایا۔ کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں پلیز؟ منشا نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چاہنے کے باوجود بھی انکار نہ کر سکا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے حویلی کی پچھلی جانب چلے آئے تھے۔ سنا تھا کہ ایک مجرم کو بھی عدالت میں اپنی صفائی میں پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اس کو بولنے کا پورا حق دیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے یہ بھی چھوٹ دی جاتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے گواہ پیش کر سکے۔ مگر تم نے تو مجھے اپنی صفائی میں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور فوراً سزا سنا دی۔ منشا اس کے برابر چلتے ہوئے بولی، ویسا قصور تو تمہارا بھی نہیں ہے، یہ ہم ہی ہوتے ہیں جو ایک انسان سے بہت سی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور جب وہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتا تو اسے قصوروار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اس سب میں اس کی کیا غلطی؟ ہر انسان کی اپنی سوچ اور لیول ہوتا ہے، اس کو اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ معاشرے کے سٹینڈرڈ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی دوسرے کی خاطر اپنی زندگی پر سوالیہ نشان کیوں لگائے گا۔ وہ اس سے ایک قدم آگے ہو کر چل رہی تھی اور حیدر خاموش سا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تم بھی اپنی جگہ ٹھیک ہو، 2 دن تک گھر سے غائب رہنے والی لڑکی کو کیوں اپناؤ گے؟ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، مگر پتہ ہے کیا، مجھے ایک بات کا بہت افسوس رہے گا کہ تم نے سنی سنائی بات پر یقین کیا اور بنا تحقیق کیے مجھ سے منہ موڑ لیا، حالانکہ مجھے سب سے زیادہ تم پر بھروسہ تھا کہ تم مجھے سمجھو گے۔ جانتے ہو، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹتے بہت زور سے ہیں۔ بالکل اسی طرح مجھے اتنی تکلیف شمیم دادی کے تھپڑوں سے نہیں ہوئی جتنی تمہارے الفاظوں نے پہنچائی تھی۔ منشا نے نم آنکھوں سے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پلٹی۔ حیدر جو خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا، اس کی آخری بات پر ٹھٹکا۔ کیا ایک دم سے اتنی بری لگنے لگی ہوں جو جواب دینا بھی پسند نہیں کر رہے؟ ارے نہیں، بس ایسے ہی تمہیں سن رہا ہوں، اس نے ہولے سے جواب دیا۔ خیر چھوڑو، سب کچھ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب بدل تو نہیں سکتا۔ ویسے کیا ہماری پھر سے دوستی نہیں ہو سکتی؟ منشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بس ایسے ہی۔ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی باتیں سن کر اسے گلٹی فیل ہو رہا تھا کہ اس نے بنا سوچے سمجھے اس کے بارے میں اتنی بڑی باتیں کر دیں۔ اوکے، تو یوں سمجھو کہ آج سے پہلے ہم کبھی ملے ہی نہیں، تو مسٹر حیدر کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ منشا نے اس کے سامنے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو اس نے کچھ جھکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دوستی میں ٹرسٹ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اگر کبھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو بلا جھجک مجھ سے کنفرم کر لینا۔ منشا مسکراتے ہوئے بولی تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ، مجھے بس یہی کہنا تھا۔ منشا کا کام ہو گیا تھا، سو اس نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی چلی تھی کہ پیچھے سے حیدر کی پکار پر اس کے قدم تھمے۔ وہ اس کی پکار پر رک گئی، البتہ رخ اپنا دوسری سمت ہی رکھا۔ منشا، کیا بڑی نانی نے زیادہ مارا تھا؟ اس کے متفکرانہ انداز میں پوچھنے پر منشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اس کا کام واقعی ہی ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے مسکراہٹ سمیٹتی اور چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اس کی جانب پلٹی۔ نہیں، بس 2 تھپڑی مارے تھے، مگر مجھے شاید اس سے پہلے عادت نہیں تھی، نہ تو اس لیے زیادہ محسوس ہوئے۔ تم پریشان مت ہو، برا وقت تھا، گزر گیا تھا، وہ لاپرواہی سے کہتی حویلی کے اندر داخل ہو گئی، مگر وہ اپنی پشت پر حیدر کی نظریں صاف محسوس کر چکی تھی۔ فرحانہ دادی کے کمرے میں بیٹھی مینا پھپھو سے کھانے کا پوچھ کر باورچی خانے میں جا رہی تھی۔ منشا اس پر ایک کڑی نظر ڈالتی ایک جانب بیٹھے موبائل میں مصروف اسونت کی جانب آئی۔ بھائی، مجھے گن چاہیے، وہ اسونت کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہے، مگر اس کے چہرے پر ذرا سی بھی مذاق یا شرارت کی رمق موجود نہیں تھی۔ تخت پر بیٹھی صفیہ خاتون نے بے اختیار اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، مگر چلانی آتی ہے؟ اسون نے موبائل بند کر کے جیب میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ گن اور رکھنے کی اجازت دے دیں، سیکھ میں ماہر اور سیفی سے لوں گی۔ گن اور اجازت دونوں مل جائیں گی، مگر ان دونوں سے سیکھنے کی اجازت نہیں ہے، مجھ سے یا شیزی سے سیکھو گی۔ اسون تینوں کو جانتا تھا، اس لیے اس نے فوراً منع کیا۔ اوکے، جیسے آپ کہیں۔ میں کہتی ہوں کہ پستول رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لڑکی ہو کوئی تو لڑکیوں والا کام کر لیا کرو، صفیہ خاتون اسون کو حامی بھرتا دیکھ کر سختی سے کہا۔ آپ جانتی تو ہیں کہ میرے ساتھ پہلے کیا حادثہ پیش آ چکا ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ دوبارہ کوئی میرے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھائے، جیسے پہلے اٹھایا تھا۔ جس نے پہلے ایسی گھٹیا حرکت کی تھی وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے،
और सच बताओ तो अब मैं तीसरी बार अगवा नहीं होना चाहती। मिंशा ने नहायत ही चालाकी से नामहसूस अंदाज में दूसरी बार अगवा की बात असफन के कान में डाली। उसकी बात पर जहाँ सफ़िया खातून को चुप लगी, वहीं असफन ठटका। तीसरी बार मतलब? हाँ, तीसरी बार। 4 दिन पहले जब मैं आ रही थी तो रास्ते में इन्हीं लोगों ने फिर दोबारा से मुझे किडनैप करने की कोशिश की, मगर जैद की वजह से बच गई। मिंशा ने चेहरे पर मासूमियत सजाए कहा। तो जहाँ सफ़िया खातून ने मिंशा को सख्त गोरी से नवाजा, वहीं असफन के चेहरे के तसुरात तान से गए। और तुमने हम में से किसी को भी बताना गवारा नहीं किया। असफर ने खुफगी से उसे देखते हुए कहा। सॉरी भाई, मुझे लगा कि महफूज तो हूँ, क्या ज़रूरत है बात बढ़ाने की? ऐसी कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, उसने मासूमियत की इंतहाओं पर जाकर कहा। व्हाट? क्या तुम पागल हो? तुम पर दूसरी बार अटैक हुआ है और तुमने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। असमंद एक झटके से उठते हुए बोला। वो ठीक कह रही है पुत्र, तुम ठंडे दिमाग से काम लो। सफ़िया खातून ने उसको बिगड़ते देखकर जल्दी से बोली। क्या ठीक कह रही हैं? पहले भी आपकी इसी बात ना बढ़ाने की मसलत ने हमें अपनी ही नज़रों से गिरा दिया है। मुझे अभी तक अपनी माँ और बहन से नज़रें मिलाते हुए शर्म आती है कि एक ही बहन है और उसकी भी मैं हिफाजत नहीं कर सका। हमारी इस खामोशी की शाह पर उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो आए रोज़ अटैक करते हैं। वो गुस्से से बोला नहीं, धाड़ा था। सफ़िया खातून की ज़ुबान तो तालों से लगी हुई थी, साथ मिंशा भी दबक कर रह गई। देख पुत्र, मैं ये कह रही हूँ कि जब अल्लाह ने बचा लिया है तो खामखा तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत है? वो उसके उतैश में देखकर संभल कर पिचकारते हुए बोली। अगर ऐसे बात बढ़ती है तो बढ़ने दें, आखिर हम कब तक बेगैरतों की तरह मसलतों को देखेंगे? मैं बात करके आता हूँ। ऐसा ही लावारिस समझ रखा है। हमारी बहन को जब जो जी चाह कर लिया। वो सोफे के सामने पड़े मेज़ को ठोकर मारता अपने कमरे की जानब बढ़ते हुए बोला। उसकी आवाज़ सुनकर शिराज और साहिल भी कमरे से बाहर निकल आए थे। अपने कमरे से गन लेकर वो नीचे आया तो शिराज भी उसके साथ हुआ लिया। साहिल जाकर रोको दोनों को, ये इस वक्त जज्बाती हो रहे हैं, उन्होंने मिंशा को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा। प्लीज़ दादी, बर्दाश्त की एक हद होती है और अब हमारी बर्दाश्त उस हद से तजावज़ कर चुकी है। हमारी खामोशी को शायद उन लोगों ने हमारी कमज़ोरी समझ लिया है, इसलिए आए दिन ऐसी ऊँची हरकतें कर रहे हैं। हमारी बहनें अभी लावारिस नहीं हुई। जो कोई भी उन पर बुरी नज़र रखे और पूछने वाला उन्हें कोई ना हो। साहिल संजीदगी से कहता हुआ बाहर चल दिया। अब तू कहाँ जा रहा है? सफ़िया खातून ने उठकर उसके पीछे जाते हुए आवाज़ दी। इस वक्त इन दोनों को मेरी ज़रूरत है और मैं मुँह छुपाकर घर तो नहीं बैठ सकता। उसने रुके बगैर जवाब दिया। या खुदा, ये लड़के कोई नया चांद चढ़ा न दे। उनकी गाड़ियों को तेज़ी से आगे पीछे निकलता देखकर वो लर्ज कर रह गई। शमीम आपा को खबरदार करने की गर्ज से वो फ़ौरन अपने कमरे में गई और फरजाना को आवाज़ देकर नंबर मिलाने को कहा। जवाब में उसने 3-4 बार कान से लगाकर उन्हें यह कह दिया कि कोई उठा नहीं रहा। या खुदा खैर करना। वो आसमान की तरफ देखते हुए परेशानी से बोली। फरजाना ने बाहर निकलकर मिंशा का काम होगा का इशारा दिया। पहली केस से एक हल्की सी झलक वो हाथ झाड़कर सोफे पर बैठती हुई बोली और रिमोट उठाकर टीवी ऑन करने लगी। तुम लोग यहाँ अचानक इस तरह से क्या कर रहे हो? वो लोग बैठक में जाने के बजाय सीधे हवेली के अंदर दाखिल हुए। लाउंज में सोफे पर बैठा आबाद उनको इस तरह से आता और ऊपर से उनके खतरनाक तेवर देखते हुए चौंका। तुम्हारी दादी कहाँ है? असफर ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। मैं उन्हें बुलाता हूँ, मगर तुम लोगों को इस तरह से अंदर आने नहीं चाहिए था। घर में औरतें भी मौजूद हैं। आबाद ने खड़े होते हुए नागवारी से कहा। उसे इन लोगों का यूं बेधड़क अंदर आना पसंद नहीं आया था। शिराज को आबाद की बात सुनकर आग ही तो लगी थी। ओह रियली? तुम लोगों को औरतों की इज़्ज़त का कुछ पता भी है? जानते भी हो कि औरत की इज़्ज़त होती क्या है? या फिर तुम लोगों की नज़र में सिर्फ तुम्हारी ही औरतों की इज़्ज़त है, इसलिए बाकियों की बहन बेटियों को सरेआम उठवाते फिर रहे हो? उसने इस्तज़ाइया कहा। शिराज की बात पर आबाद खामोश होकर रह गया। शोर सुनकर शमीम आपा भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। उन तीनों को अपनी छत तले खड़े देखकर एक पल को वो घबराई थी, मगर जल्द ही संभलते हुए वो उनकी तरफ आई और नरमी से बोली। तुम लोग खड़े क्यों हो? आओ बैठो। आप मुझे ये बताएं कि मेरी बहन का पीछा छोड़ने का क्या लेंगी? आप क्यों उसकी दुश्मन बन बैठी हैं? आखिर उसने आपका बिगाड़ा क्या है? असफर उनको हाथ उठाकर रोकता हुआ बोला। पुत्र, तेरी बहन बहू है मेरी। मुझे वो वैसे ही अजीज़ है जैसे उस घर की बहन बेटियां। तुझे कोई गलतफहमी हुई है? चल इधर आप बैठ, बात करते हैं। उन्होंने लहजे में दुनिया जहाँ की मोहब्बत समझते हुए उसका हाथ थामते हुए कहा। अलबत्ता उन्होंने दिल में सफ़िया खातून को खूब कोसा, जिन्होंने सब संभालने रखने का वादा किया था, मगर अब उनके आने की इतला भी नहीं दी थी। ऐसी अजीज़ है कि आपने उसे एक बार अगवा कर लिया और दूसरी बार फिर कोशिश की। असमन ने उनका हाथ झटकते हुए तंज किया। अच्छा तो तू आ तो सही, इधर बैठकर बात करते हैं। उन्होंने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर ले जाना चाहा। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, बस एक बात क्लियर करने आया हूँ कि आज के बाद मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी मत देखिएगा, वरना। असफन ने सख्ती से कहा। वरना क्या? क्या करेगा तू? उसका गुस्ताखाना रवैया उनसे बर्दाश्त ना हुआ तो वो एकदम से जलाल में आ गई। वरना बेटियाँ तो इस घर में भी हैं और हिम्मत हम में भी है। लाश भी
ढूंढने से नहीं मिलेगी। असफर ने पीछे खड़ी अनीला और मुकद्दस को देखते हुए मानी खीसी से कहा, तू होश में तो हो, जानता भी है क्या बकवास कर रहा है। वो उसका मतलब समझते हुए गर्राई, होश में ही हूँ, इसीलिए यहाँ खड़ा बात कर रहा हूँ, वरना जो आपने किया है उसका बदला यही बनता है। उसने कहते साथ ही कंधे उचकाए। वो एकदम से पुरसुकून हुआ था, जानता था कि अब वो दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचेंगे नहीं। असफर को पुरसुकून देखकर शमीम आपा को कुछ दिन पहले मिंशा का रवैया याद आ गया। वो भी तो ऐसे ही पुरसुकून से खड़ी थी और आज वो तीनों उसके सामने खड़े उनसे सवाल कर रहे थे। हाउ डियर यू, आपने हमारी बहनों के बारे में ऐसी बात सोची भी कैसे? हाल में दाखिल होते जावियार ने असफर की बात सुनकर लपक कर उसका गिरबान पकड़ते हुए कहा, जब हमारी बहन को यहाँ लाए थे तब शायद तुम्हारी ये नाम निहाद गैरत सोई हुई थी। अभी पूरी तरह से ज़मीन से उग तो जाओ, फिर ये बढ़ के मारना। शराज ने आगे बढ़कर असफर का गिरबान जवार से छुड़वा कर उसे पीछे किया। आफिया ने भी जावियार का बाजू पकड़कर नफ़ी में सर हिलाया। मेरी एक बात याद रखिएगा, हमारी ना तो ऐसी फितरत है और ना ही तरबियत की औरतों को निशाना बनाकर बदला लें, इसलिए आराम से समझा रहा हूँ कि आप बाज आ जाएं। अगर अब की बार उसे नुकसान पहुँचाने की या ज़बरदस्ती यहाँ लाने की कोशिश भी की तो मैं इखलाक और तरबियत के सारे सबक भूल जाऊँगा। ये तो आप जानती ही होंगे कि आँख के बदले आँख, कान के बदले कान और जान के बदले जान। मुझे मजबूर मत कीजिएगा कि आपकी सतह तक गिर कर ये तक भूल जाऊँ कि गुनाहगार कौन है और बेकसूर कौन। मेरी बहन लावारिस नहीं है जो आपका जब दिल चाहे उसे उठवा ले और जो जी चाहे करें। उसे जो थप्पड़ आपने मारे हैं ना, यकीन करें वो अभी तक यहाँ चुभते हैं यहाँ। उसने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी बहन मुझे कितनी अजीज़ है अब इसका अंदाज़ा नहीं है। आप बुज़ुर्ग हैं इसलिए चुप हो गया, वरना अगर आपकी जगह कोई और होता तो अब तक उसे ज़मीन में गाड़ चुका होता। मेरी ये बात याद रखिएगा। वो नहायत ही तम्मुल से मगर सर्द लहजे में कहकर उनके सुने बगैर शराज को लेता वहाँ से बाहर निकल गया। शमीम आपा मुतगैर होती रंगत और हालत के साथ अपने कमरे में चली गई। मुलाजमों और बहुओं के सामने उन्हें असफर का यूं बोलना खासा नागवार, दूसरे लफ्ज़ों में हतक महसूस हुई थी। उनके तो अभी तक बेटों की जरूरत नहीं थी कि वो उनके सामने कुछ बोल सके और वो उनके पोतों की उम्र का होकर उनके सामने आ खड़ा हुआ था। साहिल ने भी अभी हवेली से बाहर कदम रखा ही था कि पीछे से आबाद की आवाज़ आई। उसको समझाना कि दोबारा ऐसे दंदनाता हुआ यहाँ ना आए, वरना सलामत नहीं जाएगा। आबाद ने बाहर निकलते साहिल के नज़दीक आकर तंबीह की। वाकई मतलब खुद पर पड़ी तो हद तक का एहसास हो रहा है। हमारा क्या, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है? जब तुम्हारी दादी ऐसा घटिया प्लान कर रही थी तब उन्हें भी यही समझाना चाहिए था कि बेटियां तो उनके घर में भी हैं, और मैंने तुम्हें कहा था कि अगर कोई ऐसी वैसी बात तो हो तो मुझे इतला देना, मगर तुमने नहीं दी। साहिल मुश्तिल होकर उसी पर चढ़ दौड़ा। ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, इतना तो जानते हो ना। इसी तरह उस सब में दादी भी अकेली नहीं थी। ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारी तरफ से पूरा साथ दिया गया था, तो हम क्या कर सकते थे? आबाद ने सर झटक कर कहा। क्या मतलब? साहिल ने ठटक कर कहा। तो क्या मिंशा ने तुम लोगों को नहीं बताया? आबाद ने हैरत से साहिल को देखा। उसे शहनाज ने सारी सूरत बताई थी तो उसको लगा था कि वो घर जाकर बता चुकी होगी। नहीं तो ऐसा क्या बताना था? उसने इस्तफसार किया। ये जितना भी रायता फैला है ना, उस सब में तुम्हारी दादी बराबर की शरीक है, और ये बात परसों मिंशा यहाँ से जान कर गई है। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो? साहिल असफर और शराज को मुंतज़िर पाकर हाथ से रुकने का इशारा करते हुए दबा दबा सा चिल्लाया। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे घर के भेदी ने ही लंका ढाया है, वरना दादी अकेली इतनी हिम्मत नहीं कर सकती थी। तुम्हारी तरफ से पूरी शाह फराम की गई थी, और मुझे तो लगता है कि तुम अगर मज़ीद तहकीक करोगे तो एक आध बंदा और भी तुम्हारे ही घर से निकल आएगा। आबाद ने वजाहत करते हुए बताया। दादी ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बड़बड़ाया। ये तू जाकर उन्हीं से पूछना, और हाँ, दोबारा ऐसे ही किसी के घर में मुंह उठाकर आने से पहले अपने घर में झांक लेना। हो सकता है चोर घर से ही पकड़ा जाए। आबाद तंजिया कहता हुआ वापस अंदर चला गया। साहिल शिकस्ता कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसका फीका पड़ता चेहरा और सोच में डूबा अंदाज देखकर असफर और शराज ने एक दूसरे की जन्म देखा और गाड़ी से उतरकर मुतफक्कर से उसके पास आए कि आबाद ने उसे ऐसा क्या कह दिया जो वो यूं जर्द पड़ गया है जैसे किसी ने उसका खून निचोड़ दिया हो। वो गहरी सांस लेकर उन दोनों को देखता हुआ नफ़ी में सर हिलाता, उनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देता अपनी गाड़ी में जा बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए वहाँ से निकलता चला गया। असफर ने भी हैरत से उसका अंदाज देखा, फिर वो दोनों भी गाड़ी में बैठकर उसके पीछे ही निकल गए। हवेली के अहाते में गाड़ियों के रुकने की आवाज़ सुनकर सफ़िया खातून अपने कमरे से बाहर निकल आई। मिंशा लॉन्ज में ही बैठी मुसरत बेगम से तेल लगवा रही थी। वो मुसरत बेगम को असफर के वहाँ जाने का बता चुकी थी। उन लोगों को आगे पीछे अंदर आता देख वो दोनों बेइख्तियार उठ खड़ी हुई। असफर चलता हुआ मिंशा के सामने आकर रुका और बैग से पिस्टल निकाल कर उसके हाथ पर रखी। ये लो,
मैं शाजी से कह दूंगा, वो तुम्हें प्रैक्टिस करवा देगा। अपनी ज़ुबान में बात कर आया हूँ, उम्मीद है दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे, और अगर की भी तो मेरी तरफ से उसके बेदरेग इस्तेमाल की इजाज़त है। बस इतना ज़रूर करना कि इस्तेमाल के बाद मुझे एक मैसेज कर देना, फिर मैं जानूँ और मेरा काम। ठीक है, समझ गई ना मुन्नो? असफर ने मंशा को पिस्टल हाथ में थमाते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आया है, दिमाग ख़राब है क्या? लड़की को पिस्तौल थमा रहे हो, ऊपर से छूट भी दे रहे हो कि जो मर्ज़ी करना। इस खर दिमाग को जानते नहीं हो क्या? वो किसी को मारकर आ गई तो क्या करोगे? सफ़िया खतून ने आगे बढ़कर उसके हाथ से पिस्टल पकड़ी और मिंशा ने भी किसी फरमाबरदारी बच्चे की मानत छोड़ दी। मैंने कहा ना, मैं जानूँ और मेरा काम, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। असफर ने पिस्टल उनसे लेकर मिंशा को देते हुए कहा तो मजबूरन उन्हें खामोश होना पड़ा। बाहर के साथ साथ घर का भी ख्याल रखना, हो सकता है घर से ही कोई तुम्हारी जड़ें खोखली कर रहा हो और तुम बेखबरी में मारे जाओ। साहिल असफर के कंधे पर हाथ रखता एक नज़र सफ़िया खतून को देखता तेज़ी से जीने चढ़ने लगा। असफर ने नासमझी से उसकी पुश्त देखी, मगर उसके बोलने से पहले ही वो दूसरी पोजीशन को कॉरिडोर में मौजूद था। मिंशा ने होंठों को ज़ीरो शेप देते हुए सफ़िया खतून के माथे पर आए पसीने को देखा और अपनी तरफ उनके मतवज्जे होने से पहले ही चेहरे पर मासूमियत सजाए खड़ी हो गई, गोया उस सब मामले में उसका कोई कसूर ना निकलता हो। सफ़िया खतून पोतों के रवैयों से परेशान होती मरे मरे कदमों से अपने कमरे की जानब बढ़ी, जहाँ उन्हें साहिल की बात खटक रही थी कि कहीं वो जान ना गया हो। वहीं मिंशा अपने जहन के घोड़े दौड़ा रही थी कि कैसे साहिल को किसी को भी बताने से रोके। अभी मिंशा सोचों में यूँ डूबी हुई थी कि फरजाना उसके पास आकर तेल वाली प्याली उठाते हुए सरगोशियाँ अंदाज में बोली, क्या बना, एक ही दिन में 2 कार्ड सेव हुए हैं। हैदर और साहिल। वो मीना फुफ्फो के लिए चाय लेकर निकलती फरहाना को देखकर दिलकशी से मुस्कुराई तो वो सर हिलाती बावर्ची खाने में चली गई। मिंशा लाउंज में बैठी नोटिस तैयार कर रही थी और सफ़िया खतून अपनी मखसूस जगह पर बैठी मुलाजमा से पैर दबवा रही थी। साहिल को उसने घर में किसी को कुछ भी बताने से ये कहकर मना कर दिया था कि उसके साथ जो होना था वो हो चुका। वो नहीं चाहती कि घर में उसकी वजह से झगड़े हों। साहिल ने जहां उसकी बात मानने की हामी भरी थी, वहीं वो उसका मुतरफ भी हुआ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे दादी की इज्जत का ख्याल है। सो वो खामोश हो गया और दादी ने उसकी तरफ से दोबारा ऐसी कोई बात ना सुनकर महज गलत फहमी समझकर शुक्र अदा किया। मिंशा ने उस दिन के बाद अगर उनसे बदतमीज़ी या झगड़ा नहीं किया था तो अच्छे से बात भी नहीं की थी। कुछ वो खुद ही उससे कन्नी कतरा रही थी कि उसका क्या भरोसा कब गुस्से में आउट होकर अपना मुंह खोल दे। सो उन्होंने उसको ना छेड़ना ही मुनासिब समझा। उन्होंने सुमेरा को आवाज़ देकर उससे कड़े मांगे जो उसने उनसे लिए थे। सुमेरा ने अच्छा कहते हुए मिंशा की जानब देखा, जो सुन तो सब कुछ रही थी मगर अनजान बनी बैठी थी। उसने सुमेरा को अपनी तरफ आता देखकर बमुश्किल मुस्कुराहट छुपाई। मुन्नू कड़े कहाँ हैं? मुझे 2 ज़रा दादी को देने हैं। वो वापस मांग रही थी। सुमेरा उसके सर पर खड़ी होती हुई बोली, मगर मिंशा मुकम्मल तौर पर नोटिस में गर्क थी, गोया सारा आज ही पढ़कर छोड़ेगी। मिंशा सुमेरा ने अब की बार बुलंद आवाज़ में पुकारा, जी आपी। उसने नोटिस पर लाइनों को हाईलाइट करते हुए जवाब दिया, मगर सर उठाने की जहमत भी अभी नहीं की थी। कड़े दो मुझे। क्या दूँ? उसने नोटिस रखकर लैपटॉप उठा लिया। कड़े, सुमेरा ने उसे घूरते हुए कहा। कौन से कड़े? मिंशा ने सर उठाते हुए आंखें छोटी करके बेपरवाही से पूछा और दोबारा से लैपटॉप पर झुक गई। उसकी बात से ज़्यादा उसका अंदाज़ा निराला था। ऐसा बेपरवाह और बेनियाज अंदाज देखकर अगर जो सुमेरा कड़ों की टेंशन में ना होती तो ज़रूर दाद देती। अचानक ही उसके जहन में ख़तरे की घंटियां बजने लगीं। उसने बेयकीनी से उसे देखा जो उसकी मौजूदगी को यकसर फरामोश किए यूं बैठी थी जैसे उस वक्त वो अकेली हो और उसके आसपास और कोई ना हो। वही कड़े जो कुछ दिन पहले तुमने मुझसे लिए थे। उसने हाथ मारकर उसका लैपटॉप बंद करते हुए कहा, अच्छा वो कड़े? वो तो नहीं है, मैंने बेच दिए। उसने मुँह से बोलने के साथ साथ हाथ से भी इशारा किया। सुमेरा को दचका ही तो लगा था। बेच दिए मतलब? बेयकीनी से मुंह पर हाथ रखते हुए उसने कौन अखियों से सफ़िया खतून देखा जो मशकूक नज़रों से उन दोनों को ही देख रही थी। बेच दिए मतलब सेल कर दिए? मतलब ज्वेलर को देकर उससे पैसे ले लिए? मिंशा बाकायदा उस बेचने का मतलब समझाने बैठ गई थी। बेचने का मतलब पता है मुझे, मगर मुझे लगता है शायद तुम्हें नहीं पता था कि तुम क्या कर आई हो। उसने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा। हो सकता है उसने उसकी बात की तरदीद नहीं की थी। तुम मजाक कर रही हो ना? सुमेरा ने उसकी किसी उम्मीद के तहत पूछा कि हो सकता है वो मजाक कर रही हो। जवाबन उसने नफ़ी में सर हिलाकर दादी के हाथों उसके कत्ल पर मोहर सबत की। मैं अब दादी को क्या जवाब दूंगी? उसने बेचैनी से हाथ मलते हुए उसे देखा। मुन्नो, तुमने मुझसे 1-2 दिन के लिए मंगवाए थे तो बेचे क्यों? मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए। उसकी जानब से फ़ौरन जवाब आया था। तो पैसे लेती ना, कड़े क्यों बेचे? या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? तुम्हें कब अकल आएगी मुन्नो? उसने हाथ से उसके सर को ठोकर लगाई।
ये क्या हो रहा है? अपने कमरे से निकलते असफर ने शायद उसे देख लिया था, इसलिए वो उसके सर पर खड़ा संजीदगी से इस्तफसार कर रहा था। उसने दादी के कड़े भेज दिए हैं। सुमेरा उसके तेवरों से खाइफ होती जल्दी से बोली, तो तुम्हारा क्या मसला है? उसने उसे घूरा। मेरा मसला ये है कि वो कड़े दादी से मैंने उसे कुछ दिनों के लिए लाकर दिए थे, वो अब मुझसे मांग रही हैं। सुमेरा चबा चबा कर बोली। सफिया खातून उन तीनों को बहस करता देखकर उठकर उनके जारा भाई मिंशा खिसक कर असफर के बाजुओं के साथ लग कर खड़ी हो गई थी। किस बात का झगड़ा है? और सुमेरा, मैंने तुझे कहा था कड़े ला कर दो, दादी वही मांग रही हूँ उससे, मगर ये कह रही है उसने भेज दिए हैं। सुमेरा ने बेचारगी से कहा और सफिया खातून के हाथ से उनकी छड़ी छूटकर नीचे गिरी। उनकी हालत देखते हुए मिंशा का कहका निकलते निकलते रह गया। हमारे ख़ानदानी कंगन थे, 7 पुश्तों से चले आ रहे थे और तूने भेज दिए? सफिया खातून ने नाक पर उंगली रखते हुए हैरत और बेयकीनी के मिले जुले तअस्सुरात से बोली। ओह, तो 7 पुश्तों से चले आ रहे थे। खैर है, फिर तो इतने पुराने थे। मैं ऐसे ही जीलर को कोस रही थी कि उसने बस 3 लाख दिए हैं। मिंशा ने सुकून का सांस लेते हुए उन्हें दूसरा झटका दिया। वो कड़े तूने 3 लाख में बेचे हैं? उनकी उंगली दोबारा से नाक पर जा पहुंची। अच्छे बिक गए हैं ना? देखा फिर, मानती है ना मुझे? मिंशा ने फ़ख्र से आंखें घुमाई। मुझे लगता है तेरा दिमाग ठीक करने वाला है। कम से कम भी वो 6 से 7 तोले के थे और 3 लाख में बेच आई है। वो बेचने वाली बात को भूल कर उस बात पर सदमे में चली गई थी कि उसने इतने भारी कंगन महज 3 लाख में बेच दिए। एकदम से उनकी अंदर की चौधरायन जागी और वो झुक कर छड़ी उठाती मिंशा की जानब बढ़ी। मिंशा जल्दी से असफर के पीछे हुई। रिलैक्स दादी, क्या हो गया है? 2 चूड़ियाँ ही थी ना, आप ऐसे ही गुस्सा कर रही हैं? असफर ने उनको रोकते हुए कहा। मेरा दिमाग हिल गया है ना जो गुस्सा कर रही हूँ? और तुझे मैंने कहा था ये लड़की संभालने के काबिल नहीं है, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी और जिद की। देख लिया अंजाम। उनका बस यहाँ ना चला तो वो मुड़कर सुमेरा पर उलट पड़ी। सुमेरा को सर झुकाए डांट सुनता देख कर मिंशा ने असफर को इशारा किया। उसने उनका गुस्सा ठंडा करना चाहा कि वो उसका हाथ झटकती जलती कटती वहाँ से चली गई। बुरी बात। मिंशा के होंठों पर मुस्कुराहट देकर असफर ने उसे टोका। छोड़ें आप और ये देखें मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। वो बैग की तलाशी लेती हुई बोली और एक घड़ी निकालकर उसके सामने लहराकर उसे पहनाने लगी। ये तो बहुत महंगी है, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? असफर ने मशहूर ब्रांड की घड़ी देखते हुए पूछा। अभी बताया तो है, कड़े बेचे हैं, उन्हीं पैसों से लिए हैं। माहिर और सफियान अपने लिए ले रहे थे तो मैंने भी आपके लिए ले ली। शिराज भाई के लिए कल लेकर आऊँगी, मुझे अपना कार्ड दे दीजिएगा। मिंशा उसके बाजू पर बांधकर लाक लगाते हुए बोली। तो वो दोनों भी तुम्हारे साथ शामिल थे? माहिर तो माहिर, ये सैफ़ी को क्या हो गया? आने दो ज़रा उसको। क्या ऐसे क्या देख रही हो? हैं? सॉरी यार, आपके लिए कुछ नहीं ले सके। हाँ, मेरे पास चॉकलेट है, आप उसी से गुजारा कर लें। मिंशा ने होनक बनी खड़ी सुमेरा को चॉकलेट निकालकर ज़बरदस्ती उसे थमाई। तुम अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो चॉकलेट उसकी जानब फेंकते हुए पैर फटकती बाहर निकल गई। जैसे आपकी मर्ज़ी, मगर अभी तो बस शुरुआत है। वो नीचे पड़ी चॉकलेट उठाती हुई बिड़बिड़ाई। असफर उसके सर पर चपत लगाता उसे चाय बनवाने का बोलता वहीं बैठ गया। फुफो, मैं क्या सोच रही हूँ कि अब हैदर की शादी कर दें। मिंशा जो मीना फुफो के यहाँ आई हुई थी चाय पीते हुए बोली। वो जानबूझकर हैदर की गैर मौजूदगी में उनके यहाँ आई थी ताकि बेफिक्र होकर अपना काम सार अंजाम दे सके। तुम सारी बात जानती हो, ऐसे कैसे कर दूँ? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। कम ऑन फुफो, पुरानी बातों को भूल जाएं। माजी हमेशा तकलीफ दे होता है, अगर पीछे मुड़कर देखेंगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसलिए कोई अच्छी सी लड़की देखें और उससे शादी कर दें। अब देखें ना, यूनिवर्सिटी के बाद हैदर तो अपने काम के लिए निकल जाया करेगा और आप अकेली क्या करेंगी? बहू बच्चे होंगे तो दिल लगा रहेगा। मिंशा ने उन्हें समझाते हुए बड़ी बूढ़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। क्या तो तू ठीक रही है, मगर हैदर भी तो माने तो, और अगर वो मान भी जाता है तो अचानक से लड़की कहाँ से आएगी? वो कुछ कायल होती हुई बोली। देखिए फूफो, उसको समझाएं कि वो जो होना था वो हो चुका और मुझे भी उससे कोई शिकवा नहीं है। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी होती है। उसने जो कहा या किया वो उसकी मर्ज़ी थी। मैं या आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। जहाँ तक रही लड़की ढूंढने की बात, तो उसके लिए परेशान क्यों होना? अपनी फराना है ना, छोटे नहीं तो बड़े भाई की बेटी ही सही। मिंशा ने लोहा गर्म देखकर भरपूर चोट लगाई। क्या तो तू ठीक रही है, मगर उस लड़के से डर लगता है। अगर उसने इनकार कर दिया तो अपने मैके में क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तो पहले ही तुम्हारी माँ से शर्मिंदा हूँ। ओ यार, मेरी माँ से शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस मेरी बात पर गौर करें और आप माँ हैं। हैदर को समझाएं, बल्कि मैं तो कहती हूँ पूछने की भी क्या ज़रूरत है, अपना फ़ैसला सुनाएं। उसने बिस्कुट उठाते हुए उन्हें आइडिया दे दिया तो उन्होंने पुरसोच अंदाज में सर हिला दिया। मिंशा ने उनके लिए एक नई सोच और दरवा किया था। वो सोच रही थी कि हैदर को किस तरह मनाया जाए। उनको इस तरह सोच में डूबा देखकर वो कुर्सी से टेक लगाती घूंट घूंट चाय पीने लगी।